ضلع ننکانہ صاحب لاہور سے 75 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک دیو جی کی جائے پیدائش ہونے کے باعث ضلع ننکانہ صاحب بین الاقوامی شہرت کا حامل ہے۔ 1922 میں ننکانہ صاحب کو ضلع شیخو پورہ کی تحصیل جبکہ 1 جولائی 2005 میں ضلع کا درجہ دیا گیا۔ اس کی 4 تحصیلیں ہیں۔ ننکانہ صاحب سب سے بڑی اور نمایاں تحصیل ہے۔ ننکانہ کی آبادی تقریباً 6,84,000 افراد پر مشتمل ہے۔ 37 یونین کونسلیں ہیں اور 346 دیہات۔ ضلع بننے کے بعد جہاں سڑکوں، پارکوں، آفیسرز کلب، سپورٹس کلب اور جمنیزیم تیار کیے گئے، وہاں تعلیمی اداروں پر بھی خصوصی توجہ دی گئی۔ آئیے ہم آپ کو تعلیم کی دنیا میں لے چلیں۔ پاک گیریزن ایجوکیشن سسٹم ننکانہ صاحب، بانی و پرنسپل چودھری محمد یاسین۔ My name is Muniba. I read in Park Garrison. میں پاک گیریزن کی طالبہ ہوں۔ میں اپنے رب العزت کی پہچان کے لیے پڑھ رہی ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں ڈاکٹر بن کے اپنے ادارے کا فخر بنوں۔ پاک گیریزن اسکول کا طالب علم تعمیر شخصیت، تعمیر کردار اور لیڈرشپ میری زندگی کا مقصد ہے۔ میں ہوں پاک گیریزن ہائر سیکنڈری اسکول شعبہ حفظ القرآن کا ایک طالب علم۔ میرا مقصد دنیاوی تعلیم کے حصول کے ساتھ ساتھ ایک بعمل حافظ قرآن بننا ہے۔ I'm Mohammad Asif Javed from Cadet Section. My aim of life is to join the Pakistan Air Force as a fighter pilot. I am a Sikandar and I am a student of Pakistan High Secondary School. I want to complete the CSS exams. Education brings change in every person and education makes a man able to rule over the world. I want to. پاک گیریزن اسکول کی اسوہ ارشد اور میں اینکر بن کے صحافت کی دنیا میں حکمرانی کرنے والی ہوں کیونکہ ہم چمکتے ستارے۔ And I am the winner of Punjab competition at Punjab level in debate competition and speech competition. I am the representative of Park Garrison College. I want to become a doctor and I want to rule all over the country. Thank you. پاک گیریزن نے اپنے نام کیے ہیں وہ اعلانات جو تاریخ ننکانہ کے نام کو علمیت کے حوالے سے یاد رکھے گی۔ چلتا پھرتا انسان اس عید کا نمونہ ہونا چاہیے۔ لاہور بورڈ کی پوزیشن آنا آسمان سے تارے توڑنے کے مترادف ہے۔ کو سلوک مارنے کو دل کرتا ہے۔ اس نے کہا جہاں سائنس چلے گی اوپر اللہ کا قرآن بھی چلے گا۔ اگر نہ ہو میری نواز کا امام، میرا قیام بھی جا، میرا سجود بھی جا۔ یہ راستہ جس منزل کا ہے
प्रोग्राम भी बहुत अच्छे हैं और खासकर यहाँ पे जो मुजाहरा फजाई द्वारा किया गया, आपका स्कूल देखकर बड़ी खुशी हुई है। पाक गैरिजन हायर सेकेंडरी स्कूल ननकाना साहिब 10 अप्रैल 1997 में ननकाना साहिब में कायम होने वाला वाहिद कैडेट साज रिहायशी इदारा है जो डिसिप्लिन, मयार तालीम, सहूलियात और नताइज के एतबार से कैडेट कॉलेजेस का खूबसूरत नेमुल बदल है। 21वीं सदी के तकाजों से हम आहंग जहां तालीमी सरगर्मियां सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक जारी रहती हैं। सर अरसा में पाक गैरिजन एजुकेशन सिस्टम ने बहुत सी कामयाबियां हासिल की हैं। पंजाब भर में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया और इलाका भर के लिए रोल मॉडल का दर्जा इख्तियार किया। हर साल बोर्ड के नताइज में इदारे के तलबा और तालिबात ने सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारों में नुमाया कामयाबियां हासिल की हैं। पाक गैरिजन एजुकेशन सिस्टम में तलबा और तालिबात को अलग अलग एकेडमिक ब्लॉक में तालीम दी जाती है। तुम भी आगे बढ़ो, ऊंचा चूलो आसमां, तुम हो पाकिस्तान। जहां 4000 के करीब तलबा और तालिबात तालीम और तरबियत हासिल कर रहे हैं। तामीर शख्सियत, तामीर किरदार, यही हमारा हदफ है, यही हमारा मकसद। कंप्यूटर की तालीम, साइंस की तालीम, इंग्लिश बोलचाल, खुशनवीसी की क्लासेस, कुरान पाक की लाजमी तालीम, तकरीर व तहरीर, इस्लाही व अदबी प्रोग्राम, तफरीही टूर, कौमी और मजहबी त्यौहार, स्कूल में मुख्तलिफ नुमाइशें, साइंस मेला, असातिज़ा की वर्कशॉप्स का एहतमाम भी किया जाता है। सुबह 8 बजे तक शाम 5 बजे तक मुख्तलिफ वक्फों के साथ तलबा और तालिबात की तालीम और तरबियत की जाती है और वक्त का तकाजा भी यही है। इलाका भर के लिए एक रोल मॉडल, एक तहरीक, एक इनकलाब और एक अजीम फिक्र है। में मैट्रिक के इम्तिहानात में इदारा की तालिबा कायनात अकरम ने 1028 नंबर हासिल करके पंजाब भर के तमाम तालीमी बोर्ड्स में अव्वल पोजीशन हासिल की। 2014 में अली हसनैन ने 1072 नंबर हासिल करके लाहौर बोर्ड में दूसरी जबकि पंजाब भर में तीसरी पोजीशन हासिल की। 2015 में इदारा की तालिबा आयशा नूर ने 1078 नंबर के साथ पंजाब भर के तमाम बोर्ड्स में सोम पोजीशन हासिल की। इसी तरह पाक गैरिजन एजुकेशन सिस्टम मुसलसल 3 साल न सिर्फ लाहौर बोर्ड बल्कि पंजाब भर में रिकॉर्ड के साथ तालीमी दुनिया पर चमकता हुआ सितारा बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह। महरूम तमाशा को फिर दीदाए भी ना दे, महरूम तमाशा को फिर दीदाए भी ना दे। तुम्हारा करम है आका की बात अब तक बनी हुई है। शानदार नताइज पर हुकूमत पाकिस्तान ने प्रिंसिपल इदारा को गोल्ड मेडल, इनामात और शील्ड्स देकर इनकी खिदमत को पब्लिकली तस्लीम किया। पाकिस्तान भर के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी भरपूर सराहा।
ذہانت کسی کی میراث نہیں، یہ ثابت کیا ہے میٹرک کی طالبہ کائنات اکرم نے پنجاب بھر میں اول پوزیشن لے کر خداداد ذہانت سے مالا مال کائنات اکرم نے الف بے پہ یقین کی ایک اور روشن مثال قائم کر دی ہے۔ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ علی حسنین علامہ اقبال کے شعر کی ابھی تصویر ہے جس نے اپنی محنت سے تمام تر مشکلات کے باوجود لاہور بورڈ میں دوسری اور پنجاب بھر میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ عائشہ نور نے میٹرک 2015 کے سالانہ امتحانات میں لاہور بورڈ میں تیسری پوزیشن حاصل کر لی۔ عائشہ نور کا کہنا ہے کہ یہ کامیابی اساتذہ کی محنت اور والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ We have عائشہ نور رائٹ، تو عائشہ مجھے آپ بتائیے کہ لاہور بورڈ تھرڈ پوزیشن 1078 مارکس لینا، یہ سب لاہور بورڈ میں پوزیشن لینا بہت ڈیفیکلٹ ہے، اور آپ ننکانہ سے آئی ہیں رائٹ، پوزیشن لینا بہت مشکل ہے اکیڈمی کے بغیر اتنی کمپٹیشن میں۔ پاک گیریزن ایجوکیشن سسٹم نے تاریخ رقم کرنے کا آغاز 15 سال پہلے ہی کر دیا تھا جب وزیر تعلیم پنجاب نے ادارہ کا وزٹ کیا اور ادارہ کی شاندار تعریف کی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ معزز سامعین کرام پنڈال میں تشریف لا چکے ہیں اور ایسا اپنی مخصوص نشستوں کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ ماشاء بہت سی مدرسی نام تو رادیو میں گیا ہوا ہے جس میں طلبہ تمرین رشوت اور سوارش تو عام ہے، لیکن جس نصیب کو میں بے نکال کرنے والا ہوں وہ ہے رشوت۔ حدیث نبی ہے الراشی والمنتشر کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اب میں آپ کو ایک اور آنکھوں کے بہار سے بتاؤں کہ میٹرک کے امتحان ہو رہے تھے، طالب علم پرچہ دیتے ہوئے جیل میں 100 روپے نکالا اور نگران کو دیتا ہے، نگران کو 100 روپے دے کر کہتا ہے کہ مجھے الراشی والمنتشر کلاہما فی النار کا ترجمہ لا دو۔ Today I have the honor to address this august ceremony on the occasion of the 50th year of the Golden Jubilee of Pakistan's independence. نیشنل چیمپئن گولڈ میڈلسٹ ہیں اور ملی نغمہ کے لیے کیڈٹس سب کی تشریف آوری پر میں اپنی طرف سے اور اپنے رفقار کی طرف سے تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب اعلیٰ، بچے قوم کا متاع عزیز ہے، قوم کی نشوونما، قوم کی فلاح، قوم کی بقا آج کے نامحرام وطن کے دانوں سے وابستہ ہے جو مستقبل میں قوم کے لیے مینارہ نور ہیں۔ اگر پاکستان کا کوئی مسئلہ ملکی و قومی مفاد کے زاویہ نگاہ سے غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے تو کروڑوں بچوں کی تعلیم و تربیت کا ہے۔ ارشاد ربانی ہے اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے، اچھی بات کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ یہ حیات بخش پیغام مشرق و مغرب میں پہنچا
आफाक आलम में तौहीद की जान परवर सदा गूंजी। ऐसे मुजाहिद जिन्होंने मुमलकतों को फतह किया और कुलूब के जुल्म कदों में हदायत के चिराग फरोजा किए, वो इन मकातबे फिक्र के परवरदा थे। अगर आज हम भी आरज़ूमंद हैं कि इस्लाम एक मौसर और फैसला कुल कुव्वत की हैसियत से जिंदा रहे और इसका सराज मनीर बातिल की फैलती हुई तारीकी को समेटने और सुकड़ने पर मजबूर कर दे, तो हमें इन तालीमी इदारों के क़याम और इन बच्चों की तालीम और तरबियत पर तवज्जो देना होगी, जिसमें नजरिया पाकिस्तान और इस्लामी तर्ज जिंदगी की तालीमात दी जाएं, ताकि इन दरसगाहों के फैल याफ्ता आलम इंसानियत को भलाई की तरफ बनाएं, नेकियों का हुक्म दें और बुराइयों से रोकें। जनाब सदर, ऐसे शाहीन सिख इफराद की तालीम और तरबियत के लिए हमें बड़ी से बड़ी कुर्बानी, ईमानी फरासत, कल्बी बसीरत और इखलाकी तरबियत की जरूरत है। जनाब आला, यही वो मुहर्रकात थे जो पाक गर्जन कैडेट स्कूल की असास ठहरे। इस इदारे के क़याम के दौरान अगरचे बेशुमार मसाइल भी आए, रुकावटों की आंधियां भी चली, लेकिन ज्यादा इश्क व मस्ती के मुसाफिर चलते ही रहे, क्योंकि मुझे यकीन कामिल था कि ये रास्ता जिस मंजिल का है अगरचे दुश्वार गुजार है, लेकिन वो अपनी अफादियत और अजमत के बायस इस काबिल है कि इस पर रसाई हासिल करने के लिए मुश्किलात की सगरात चट्टानों से टकराते हुए आगे कदम बढ़ाया जाए। लिहाजा अपने परवरदिगार की नुसरत व मदद पर भरोसा करते हुए आगाज कर दिया। जनाब सदर, इस इदारे का मकसद सिवाय इसके कुछ नहीं कि नस्ल नौ को इल्मी और फिक्री, इखलाकी और रूहानी, साइंसी और अस्करी तालीम दी जाए, ताकि नेक, सालेह और बाकरदार कौम तैयार हो जो गुफ्तार व किरदार की राजी बने। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आजम पाइंदाबाद। शहरों के बंदों की लेकिन बम फंस रहे हैं। पैरामेडिकल स्टाफ अपनी जानों की परवाह न करते हुए जख्मियों की मरहम पट्टी में मसरूफ है, तो उनके बारे में शायर खूब कहा है। महाशयों ने भरपूर अंदाज में, अब मेरे ख्याल है कि जख्मियों की मरहम पट्टी करने के बाद वो उनको जिस तरह से जहाज उड़े थे दुश्मन के उस तरफ लेकर जा रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ये हैंड स्टेजर बनाकर खुद मुकाम पर पहुंचाएंगे उनको, और उनको इब्तदाई की टीम डाल के बाद जो सीरियस मरीज है उनको हॉस्पिटल, ये स्टेजर पर मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा जख्मी हो गए हैं, तो उनको उन्होंने महफूज मुकाम पर पहुंचा दिया है। बहुत अच्छी तरह अब मेरा ख्याल है ये दुश्मन की बमबारी है बड़ी जबरदस्त थी, तो मेरा ख्याल है किसी मुकाम पर आग लगी हुई है, तो ये आग जो है हमारा दूसरा फायर ब्रिगेड का अमला बचाएगा, ये एक नन्ना बचाएगा हाथ में अवेयरनेस लिए हुए
बहुत ही तेजी के साथ लकड़ियों की मदद के लिए जा रहा है और सबसे हम रोहानी है कि जिसने वायरस करके सब हमले को ये पहला मौका है कि मौलाना साहब ने मौके पर आप बचाई गई है, हमारा उससे पहले तो बाजार के बाजार चल रहे हैं। हाँ जी, बाजार चल रहे हैं। सब प्रोग्राम देख के सब प्रोग्राम भी बहुत अच्छे हैं और खासकर यहाँ पे जो मुजाहरा फजाई द्वारा किया गया वो काबिल इस्ताइश है और काबिल तारीफ है। मैं इसके लिए पाक गैरिजन पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल साहब और उनके दूसरे अस्तादा काम और इंस्पेक्टरों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस स्कूल का तालीमी म्यार, इसका डिसिप्लिन, इसमें नज़्म व ज़ब्त और इसके मुस्तक़बिल के अज़ाइम बहुत अच्छे हैं। मैं प्रिंसिपल और स्टाफ को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम इस सिलसिले में उनके साथ भरपूर ताउन करेंगे। मुझे आपका कॉलेज देखकर, आपका स्कूल देखकर बड़ी खुशी हुई है कि ननकाना में एक ऐसा स्कूल है जो बच्चों को इस तरीके से तैयार कर रहा है जिसका नमूना आप सब ने मैंने आज यहाँ देखा है। ये बड़ी ही हौसला अफजा बात है कि ऐसे मयारी अदारे प्राइवेट सेक्टर में अगर हमारे दूर दराज इलाकों में खुलेंगे तो उससे हमारे बच्चों को वो कश्मीरी जो पब्लिक स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में नजर आती है, उसकी तकमील हो सकेगी प्राइवेट इदारों के लिए। ये बड़ा खुशहंद कदम है आपका और मैं दिल की खाद गहराइयों से जनाब प्रिंसिपल साहब और तमाम असातिज़ा किराम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने बड़े अच्छे इनिशिएटिव का आगाज किया है, बहुत अच्छा काम आपने किया है। मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से 50,000 का ऐलान करता हूँ। FSC के शानदार नताइज ने इदारा की तरक्की को एक नया मोड़ दिया जब अल्लाह ताला के फजलो करम से सैकड़ों तलबा और तालिबात ने आला नंबर्स और नुमाया पोजीशन का लामुतनाही सिलसिला शुरू कर दिया। FSC के शानदार नताइज के बाद क्वालिफाइड और तजर्बाकार असातिज़ा की निगरानी में इंट्री टेस्ट का आगाज किया गया। 2013 में पाकिस्तान भर के मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में डॉक्टर और इंजीनियर बनने वाले तलबा के एजाज में 2013 में शानदार कॉन्वोकेशन का एहतमाम किया गया। लेट्स हैव अ ग्लिम्प्स। वज़ीर तालीम
کا بیٹا سن رائے سے ہمیں اطلاع دی ہے کہ وزیر تعلیم کی میٹرک اور ایف اے کی اسناد جعلی آپ آ رہی ہو؟ ہاسپٹل سے کال ہے، ایمرجنسی ہے. مجھے بھی جانا ہے، آرام سے چلی جائیں گی. ہم قوم کے خادم ہیں، ہمیں وقت پر جانا چاہیے. बगरना
हैं सेकेंड ईयर के स्टूडेंट वासिफ बशीर। Give him big hands. Park Garrison is the best substitute to cadet colleges. In no time, the institute has got a lot of achievements. The institute remains open from 8:30 to 10 o'clock, including different breaks. 5-time prayers, recitation of Holy Quran is necessary. Bazm-e-Adab is conducted by the school management. Park Garrison has the best housing system from where the students gather to get their technical and quality education. Park Garrison has achieved countless achievements in no time. This year, one of our students, Mahnoor and Rabia Rashid, got first and third position in elementary board. Tasbiha Iman got 1013 marks in matriculation. Respected audience, Assalamu alaikum. I am Fahad Yasin from Cadet Senior. Respected audience, two things in this world never lessen. Knowledge is the first one. So, I share something to you. Honorable audience, as all of you know that Iblis was the master of the angels because he had a lot of knowledge, but he was not obedient. That's why he was driven out from the heaven. So, we can say that obedience is the master key to success. In this respect, I am thankful to the management of this well-known institute and the teachers who selected me as an obedient student of the year. Once again, I thank the teachers from the core of my heart. Allah Hafiz. Students and administration and teachers of this school. Minha Zari is receiving a prize. Tasbiha Iman. Amar Rashid, Mahnoor. Zamana Naye Subho Sham. Rabia Rashid. स्टूडेंट को एजाज हासिल है कि ये पाक गार्जियन हायर सेकेंडरी स्कूल की पहली तालिबा है जिन्हें ये एजाज हासिल हुआ आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का। आपकी भरपूर डॉक्टर मरियम ताहिर MBBS MMC। शाजिया नौरी, डॉक्टर शाजिया नौरी MBBS SJMC। डॉक्टर तबस्सुम फारूक, शहीरा अकरम MBBS MD नैरा शमशाद। FSC मैट्रिक और मिडल के शानदार नताइज के साथ साथ पाक गैरिजन एजुकेशन सिस्टम के कैडेट्स ने पायलट और आर्मी ऑफिसर बनकर पाकिस्तान के तमाम शोबों में रसाई हासिल करके अपने इदारे का नाम रोशन किया। जिंदा तमन्ना दे यार फिर वादिए फारा के हर जर्रे को चमका दे फिर वादिए फारा के हर जर्रे को चमका दे फिर शौक तमाशा दे फिर शौक तकाजा दे। हमें भरोसा है अपने नौजवानों पर। नया दिन चढ़ रहा है, वक्त आगे बढ़ रहा है, तुम भी
भी आगे बढ़ो, ऊंचा उड़ो, चूलो पाक गैरिजन एजुकेशन सिस्टम के तलबा और तालिबात ने तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ वज़ीर आला पंजाब के प्रोग्राम यूथ फेस्टिवल और तकरीरी और मजमून नवीसी जैसी हम निसाबी सरगर्मियों में भी पंजाब भर में अव्वल, दोम और सोम पोजीशन हासिल की और तकरीर और तहरीर की दुनिया में भी अपनी हुक्मरानी का ख्वाब पूरा कर दिखाया। दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, यार दिल मुस्लिम को जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, यार दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, यार हम निसाबी सरगर्मियों की अहमियत को समझते हुए प्रिंसिपल इदारा चौधरी मोहम्मद यासीन ने 2002 में पाकिस्तान क्रिकेट की दुनिया के मायानाज सुपरस्टार आकिब जावेद को इदारा की सालाना गेम्स में दावत दी और शानदार प्रोग्राम किया। हम अपने मुल्क का तराना सुनाना चाहते हैं, तो इस तराना साहब ने बाकायदा तौर पर गेम स्टार्ट करने की इजाजत दे दी है। और इसके साथ ये रेस का इख्तिताम हुआ। सब साथियों ने अपने अपने Are you Cadet Commander Adil? Yes, sir. You have to complete your mission immediately. I just will be there. Okay, move on. कैडेट कमांडर अजीम बच्चों को लड़ाई के सिलसिला में लेक्चर दे रहा था। अपने साथियों को दुश्मन से छुड़ाने के लिए तैयारी हो रही है। यूनिफॉर्म पहनकर हथियार लेकर आगे बढ़ रहे हैं। शाबाश शाबाश। अपने साथियों को छुड़ा लिया गया है। दुश्मन को मौत के घाट उतारकर पाक आर्मी के जवान अपने अपने साथियों को छुड़ाकर ले जा रहे हैं। वेल डन, वेल डन। हमें भरोसा है अपने नौजवानों पर। नया दिन चढ़ रहा है, वक्त आगे बढ़ रहा है, तुम भी आगे बढ़ो, ऊंचा उड़ो, चूलो आसमां, तुम हो कामयाबी से उन्होंने
आपने नहीं को खैर किया, ये खान तुम्हारे बढ़ो हर मैदान जीतना, छूलो आसमान, तुम हो पाकिस्तान, छूलो आसमान, तुम हो। जो कि हर सेक्शन से हर टीम ने हिस्सा लिया है। बहरहाल मैं क्लासेस की तरफ नाम इस वक्त देना चाहूँगा। मंजिलें रोशन हुई है, आसान है अब सफर, चाहो अगर हो छूलो आसमान, तुम हो पाकिस्तान, छूलो आसमान, तुम हो पाकिस्तान। मेरी जूनी दे धागे बग्गे, मेरी जूनी दे, ओ मेरी जूनी दे धागे बग्गे, जुगनी ओदे मुठी, जुगनी ओदे मुठी फब्बे ओ जिन्नू सत इश्क दी लगे ओ फिर मेरे आ जुगनी, फिर मेरे आ जुगनी कहंदी आ वे नाम सजन दा, नाम सजन दा, नाम सजन दा लैंदी आ कड़ी बैठ के कलमा कहंदी आ। ओ वावा मो जवानी वाली शहद गुड़े तू मिठी, ओए आई जवानी यार पुराना जांदी किसान डिठी। पाक गैरिजन एजुकेशन सिस्टम एक रिहायशी इदारा है जहां पाकिस्तान भर से तलबा हसूल इल्म के लिए रिहाइश पजीर है। मयारी मेस और बुनियादी सहूलियात से मुज़य्यन जहां असातिज़ा की निगरानी में तलबा 24 घंटे तालीम और तरबियत हासिल कर रहे हैं। प्रिंसिपल इदारा अपनी टीम के साथ हासिल के तलबा को तामीर शख्सियत, तामीर किरदार और लीडरशिप के लिए खसूसी वक्त देते हैं ताकि एक अजीम कौम तैयार हो। पाक गैरिजन एजुकेशन सिस्टम कदीम व जदीद अलूम का हसीन इम्तिजाज है जहां जदीद साइंसी असरी अलूम के साथ साथ नाजरा और हिफ्ज़ कुरान पाक का खसूसी एहतमाम किया गया है। 2015 में इदारा के फारिग तहसील हफ़ाज की दस्तार बंदी के लिए एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें पोजीशन होल्डर्स असातिज़ा किराम को इनामात, शील्ड और उम्रा का टिकट देकर इनकी खिदमात का पब्लिकली एतराफ भी किया गया। बहुत बड़े बड़े एजाज़ात पाक गैरिजन ने अपने नाम किए हैं। वो एजाज़ात जो तारीख ननकाना के नाम को इल्मियत के हवाले से याद रखेगी। पाक गैरिजन आज वो अवार्ड अपने नाम कर रहा है जो दीन और दुनिया की भलाइयाँ अपने अंदर समेटे हुए है। आज ननकाना का
फख्र से बुलंद कर देते हैं और वो एजाज़ात जो पूरे पाकिस्तान में ननकाना की पहचान बने। ये आज के एजाज़ में तकरीब ये पुरवकार तकरीब सजाई गई है। चलता फिरता इंसान उस ऐद का नमूना होना चाहिए। यार जंग लड़े है, जो करना है आज करना है, अभी करना है। आज की तकरीब मेरी ज़िंदगी का हासिल है। I would say कि I really appreciate चौधरी यासीन साहब के उन्होंने उस्ताद इकराम को भी इंकरेजमेंट के लिए इनामात दिए। ये हमारी गुलामी में अपने आप को शुमार करने वाली शख्सियत है। मोहम्मद यासीन साहब मेरे नज़दीक मुहैय्यत तालीम कहलवाने के हकदार हैं। ननकाना चौधरी मोहम्मद यासीन साहब है। जनाबे वाला यासीन साहब के ननकाना आने से पहले ननकाना का तालीमी माहौल समंदर में गर्क हो गया था। मर्द हुकूमत ने जिला ननकाना के कमोबेश 700 से ज़ायद स्कूल मालकान व प्रिंसिपल साहबान को एक प्राइवेट स्कूल यूनियन के प्लेटफार्म पर इकट्ठा किया और यूनियन के बानी होने का एजाज भी हासिल किया कि लोग ननकाना से बाहर पढ़ने और पढ़ाने के लिए जाया करते थे। आज वक्त है कि लोग बाहर से ननकाना पढ़ने और पढ़ाने आते हैं। ये एजाज भी इसी मर्द जुनून के पास है। लाहौर बोर्ड की पोजीशन आना आसमान से तारे तोड़ने के मुताबिक है। लाहौर बोर्ड में से मैट्रिक एफएससी की नुमाया पोजीशन भी इसी मर्द का एजाज जो है वो वादे है। और ये खास मैदान पंजम का हो, हाशतम का मैदान हो, मैट्रिक का मैदान हो, एफएससी का मैदान हो, खेल का मैदान हो या यूथ फेस्टिवल का मैदान हो, कोई इस मुकाबले का मैदान हो या पेंटिंग का मैदान हो, तकरीर का मैदान हो या तहरीर का मैदान हो, तिलावत का मैदान हो या नात का मैदान हो, फूलों की नुमाइश हो या वाक का मैदान हो, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पायलट, वकला, प्रोफेसर, अल-गज़ पाक ने तालीमी और अदबी मैदान में जो अपना लोहा मनवाया है और लोहा मनवाने के बाद अपना कोई सानी नहीं छोड़ा। जनाबे वाला हमारे नजदीक जो पंजाब टॉप करता है वो दरअसल पाकिस्तान टॉप करता है। इतना भी लेनी है तो सिर्फ खानकाह में न बैठ, किसी ऐसे इदारे में भी आ जहां दीन भी है, जहां दुनिया भी है। के बावजूद इस मर्द कलंदर को सलूट मारो कि इस पुरफितन दौर के अंदर, इस जुल्मों पर बरियत के दौर के अंदर, इस आफाती दौर के अंदर जहां दुनिया का निजाम, दुनिया की तालीम हमारे घरों पर छा गई, मीडिया की बेहयाई छा गई, मीडिया की बेगैरती छा गई, कुफर हमारे घरों में आ गया। कुफर को सलूट मारने को दिल करता है। इसने कहा जहां साइंस चलेगी ऊपर अल्लाह का कुरान भी चलेगा। तो आए जो कहे मेरे बच्चे का किरदार कैसा है, कोई तो आए जो कहे मेरा बच्चा नमाजी बना या नहीं बना, कोई तो आए जो कहे मेरा बच्चा 24 घंटे बावजू रहता है, कोई तो आए जो कहे मेरा बच्चा जाता है तो दुरूद पढ़ता है, आता है तो दुरूद पढ़ता है, कोई तो आए जो कहे मेरा बच्चा सोता है तो मदीना मदीना कहता सोता है। बच्चे को 3 बातें सिखाओ। सबसे पहले नबी का अदब, दूसरी बात हुब्ब अहले बैत ही, उसकी अहले बैत का मोहब्बत, हुसैन का दर्द सिखाओ, और तीसरी चीज फरमाया कुरान सिखाओ। मेरी आस पे मेरे तवक्कल पे ने कामयाबी अता फरमाना। इनकी तरह हमारे मुल्क के तमाम स्कूलों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम का सिलसिला शुरू करने की तौफीक और हिम्मत अता फरमा और इन्हें कामयाब अल्लाह हमें वो वलायत अता फरमा। या अल्लाह जो यासीन साहब को अजीम रहमतों से मालामाल फरमा, जिन्होंने आगाज कर दिया है आगे वो खिलाने के हम सबको सादत नसीब। वो असातिज़ा इकराम जिन्होंने अपनी सुबह शाम इस कौम को दी है, उनके आजाद में 2 बड़े चक्कर
जिसने मदीने जाना कर लो तैयारियां, जिसने मदीने जाना कर लो तैयारियां, बेड़ा मदीने वाला लैंदा पिया तारियां, बेड़ा मदीने वाला लैंदा पिया तारियां। मुझे हुक्म अज़ां है, मुझे आपको मैसेज देना है, उठो और दुनिया पर छा जाओ। पैगाम बानी और प्रिंसिपल चौधरी मोहम्मद यासीन, पाक गैरिजन एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब। मुझे है हुक्म अज़ां, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाक गैरिजन एजुकेशन सिस्टम एक तालीमी तहरीक का दूसरा नाम है जो तालीमी इनकलाब के लिए शब रोज़ कोशा है। मेरा मकसद अल्लाह ताला की रज़ा का हसूल है। मेरे नज़दीक मुस्लिम उम्मा के लिए जदीद उलूम का हसूल नागुज़ीर है। हमारे प्यारे नबी रहमत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अक़दस है, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज है। ऐसा इल्म जिससे तलबा और तालिबात की ज़हनी, मजहबी, फ़िक्री, रूहानी और अखलाकी तरबियत हो, नेक और साले अफराद पर मुश्तमिल नेक कौम तैयार हो, तलबा और तालिबात फैज़याब होकर आलम इंसानियत को भलाई और नेकी की तरफ बुलाएं, बुराई से रोकें। खालिद बिन वलीद, मोहम्मद बिन कासिम, सलाहुद्दीन अयूबी, तारिक बिन ज़ियाद, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और अल्लामा मोहम्मद इकबाल जैसे मर्द कलंदर पैदा हों। मुसलमान डॉक्टर, मुसलमान इंजीनियर और मुसलमान सिविल और फौजी अफीसर, मुसलमान असातिज़ा और मुसलमान लीडरशिप बनाना ही हमारा ख्वाब है। पाक गैरिजन एजुकेशन सिस्टम ने एक अजीम सोच और फिक्र पैदा की है। ये इदारा एक फिक्र, तालीमी तहरीक और तरबियत गाह है। इस मिशन में जो असातिज़ा इकराम, तलबा और तालिबात मेरे साथ शाना बशाना काम कर रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ। ख़ुसूसन असातिज़ा को सैल्यूट करता हूँ और उनकी दुनिया और आखिरत में कामयाबी की दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला उनको अजीम कामयाबियों से नवाजे। दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। जिस तालीमी इनकलाब की बुनियाद मैंने रखी है उसको मेरी ज़िंदगी और ज़िंदगी के बाद भी मंतकी अंजाम तक पहुँचाना तलबा और तालिबात, असातिज़ा, इंतज़ामिया और दर्दमंद अफराद की जिम्मेदारी है। क्या आप उसको पूरा करेंगे? अल्लाह ताला हमारा हामिद व नासिर हो, आमीन। खुदाया आरज़ू मेरी यही है, खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। निगेह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोज, निगेह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोज, यही है रखते सफर मेरे कारवां के लिए। न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए, न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। सितारों से आगे जहां और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। कनात न कर आलमे रंगो बू पर, कनात न कर आलमे रंगो बू पर, चमन और भी हैं आशियां और भी हैं। तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है। नमाजों रोजाओं कुर्बानियों हज ये सब बाकी हैं, तू बाकी नहीं है।
खो ना जा इस सहरो शाम में ए साहिबे होश, खो ना जा इस सहरो शाम में ए साहिबे होश। एक जहां और भी है जिसमें न फर्दा है न दोष। दिल है मुसलमान तेरा न मेरा, दिल है मुसलमान तेरा न मेरा। तू भी नमाजी मैं भी नमाजी, आ तुझको बताऊं मैं तकदीरे उमम क्या है। आ तुझको बताऊं मैं तकदीरे उमम क्या है। शमशीरो सिना अव्वल ताउसो रुबाब आखिर। मेरी नवाए परेशान को शायरी न समझ, मेरी नवाए परेशान को शायरी न समझ कि मैं हूं महरमे राजे दुरूने में खाना। जवानों को सोजे जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नजर बख्श दे। जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शाही बच्चों को बालों पर दे। खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे।